اور یہ تصویر میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا صاحبزادہ ہے۔ یہ جو والدہ کی آپ کو رونے کی آواز آ رہی ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کرام اس بہن کے لیے جو باپ بھی تھا اور بھائی بھی تھا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس گھر کی کفالت کرنے والا اور اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ جس دن اس کی پیدائش کا دن تھا یعنی کہ اس کی برتھ ڈے تھی اسی دن اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہتے ہیں روحانی کو گولی لگ گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ میرے سے چھوڑ کے جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، میرے بھائی نے میری بہن کو میری بیٹی کو کہتا کاکے میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ بعض دفعہ انہوں نے یہ آپ کی بیٹی کو کہا، میری بیٹی کو کہتا کاکے میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان ہو۔ اس کو دیکھ کے اسمائل بھی پاس کیا کہ وہ پریشان نہ ہو، اسے بہت محبت تھی اس کو۔ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بھائی ہمیں ایسے چھوڑ کے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کبھی بے انصافی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کر دی۔ ان سے پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ کیا۔ میری ماں نے بیوہ ہو کے میرے ابو کو گئے ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ میری اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیے۔ میرا بھائی سافٹ ویئر انجینئر بن رہا تھا اور وہ گیریزن یونیورسٹی DH میں پڑھ رہا تھا۔ میری اماں اس کی پتہ نہیں کیسے فیسیں افورڈ کر رہی تھی۔ بھائی کو پتا چلے میں یتیم تھا، میرا کوئی اور بھائی تھا، لیکن میری بہنوں نے میرے لیے انصاف مانگا، مجھے انصاف ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز۔ ناظرین کرام، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں آئی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ والدہ اور بہن موجود ہے اور یہ تصویر میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا صاحبزادہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو والدہ کی آپ کو رونے کی آواز آ رہی ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گا، جو ان کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر اسی دنیا میں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ ناظرین کرام، اس بہن کے لیے جو باپ بھی تھا اور بھائی بھی تھا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ 18 سال پہلے ان کے والد صاحب چھوڑ کے چلے گئے اور ان کا بھائی اب ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ناظرین کرام، اس گھر کی کفالت کرنے والا اور اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے یعنی کہ ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن اس کی پیدائش کا دن تھا یعنی کہ اس کی برتھ ڈے تھی اسی دن اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، والدہ تو بات نہیں کر سکتی لیکن آئیں ان کی بہن سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیسے آپ کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کی والدہ کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جب یہ خبر ملی تو کیا تھے جذبات آپ؟ کچھ بھی نہیں، مجھے جب یہ خبر ملی میں اپنے گھر پہ تھی، میرے گھر سے وہ آیا تھا دوپہر کو 3 بجے۔ ہم نے اس کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی نے میرے گھر پہ رکھی ہوئی تھی، میرے گھر پہ تھا وہ۔ رات کو اس نے اسٹے میرے گھر پہ کی ہے۔ میرے ہسبینڈ کام سے آئے ہیں، مجھے ہم نے آ کے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 9:45 بجے میرے ہسبینڈ کو کال آتی ہے، علی کو گولی لگ گئی ہے۔ یہ بیٹھ کے رونے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا جمشید کیا ہوا ہے؟
कहते कुछ नहीं। मैंने कहा बताए मुझे क्या हुआ है। मैं इनको तसल्लियाँ दे रही हूँ, जमशेद क्या हुआ है मुझे बताए। मुझे लगा इनकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है या कुछ हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। इन्होंने मुझे बताया, कहते हैं रोहाली को गोली लग गई है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरे रास्ते दुआएं करते गई, या अल्लाह पाक मेरे भाई को जो गोली लगी है टांग पे लगी हो, बाजू पे लगी हो, मेरे भाई को कुछ ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था वो हमें ऐसे छोड़ के जाएगा। मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने देखा हर तरफ खून ही खून था, सब रो रहे थे। जब मैंने अपने भाई को देखा उसकी आंखें खुली थी, वो होश में था, सुकून से लेटा हुआ था, उसको गोली लगी थी लेकिन ब्लीडिंग नहीं थी हो रही। मैंने कहा या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, मेरा भाई ठीक है। मैंने कहा अभी ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, घंटे तक आ जाएगा मेरा भाई, हम ठीक है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा भाई ठीक है। मेरे भाई ने मेरी बहन को कहा, मेरी बेटी को कहा, कहता काके मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। लास्ट दफा उन्होंने ये आपकी बेटी को कहा? मेरी बेटी को कहा, कहता काके मैं ठीक हूँ, आप परेशान हो। उसको देख के स्माइल भी पास किया कि वो परेशान ना हो, उसे बहुत मोहब्बत थी उसको। यानी कि अपने दर्द आपी वो साथ ही ले गया हंसता हुआ, लेकिन वो दर्द अल्लाह ताला की तरफ से जो दिया। उसको भी नहीं पता था कि वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, शायद उसको नहीं था पता, क्योंकि वो जिस तरह था ना हिम्मत में, मुझे क्या किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो ऐसे जाएगा। फिर उसका ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने बताया कि जब हमने ऑपरेशन करने के लिए उसके पेट को काटा है, खोला है, देखे हमने, तो जो ब्लीडिंग उसकी बाहर नहीं हो रही थी वो उसके पेट के अंदर हो रही थी। तकरीबन 2 लीटर खून उसके पेट में जमा था उस वक़्त, और उसके दिल की जो नाली थी उसके ऊपर गोली लगी थी। वो नाली कटने की वजह से उसकी डेथ हुई है, उसका दिल बंद हो गया था। जिस दिन उनकी डेथ हुई है आपके भाई की, उस दिन उनकी बर्थडे भी थी, यानी पैदाइश का दिन भी था उनका। तो आपने सब कुछ अरेंज किया हुआ था, कोई ख्याल था कि ऐसा वाकया हो जाएगा? हमने कभी उस दिन क्या हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा भाई हमें ऐसे छोड़ के जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पता होता है कि इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह कभी बेइंसाफी नहीं करते, लेकिन उन्होंने कर दी। उनसे पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये किया। मेरा भाई जवान भाई, वो बहुत प्यारा था, बहुत हसीन था मेरा भाई। हमने कभी नहीं सोचा वो हमें ऐसे कभी भी छोड़ के जाएगा। इन्होंने ये किया है, क्या पंजाब पुलिस ने अभी तक कुछ किया, या आपको कोई सहारा देने के लिए कोई आया हो घर में? आए हैं, SHO साहब आए हैं, ख्वाजा साद रफीक आए हैं। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। पर पता नहीं तफ्तीश कहाँ तक गई है, कहाँ तक नहीं पहुँची, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने भाई को रो रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसे किया है? और देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनके भाई अभी भी हैं और उनके साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है। आप बताएंगे क्या सज़ा होनी चाहिए जो आप दें? मेरे सामने उसको फांसी पे लटकाया जाए, हमारे चौक में खड़ा करके उसको फांसी दी जाए, हमें फिर सुकून मिलेगा। मेरी माँ ने बेवा होगी, मेरे अब्बू को गए हुए 18 साल हो गए हैं। मेरी अम्मा ने लोगों के घरों में काम किए। मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था और वो गैरिसन यूनिवर्सिटी DHA में पढ़ रहा था। मेरी अम्मा उसकी पता नहीं कैसे फीसें अफोर्ड कर रही थी। मेरी अम्मा ने बहुत मुश्किल से उसका खून का एक कतरा बनाया। मैं चाहती हूँ उसका भी इसी तरह खून का एक कतरा बहाया जाए, मुझे फिर सुकून मिलेगा। मेरे भाई को पता चले मैं यतीम था, मेरा कोई और भाई था, लेकिन मेरी बहनों ने मेरे लिए इंसाफ मांगा, मुझे इंसाफ मिला है। शोर वाली जगह हो या रश वाली जगह हो जहाँ पे ऐसे वाक़यात हों, बहुत सारे बच्चे शुगल देखने के लिए यानी कि तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं। तो आप कुछ उन लोगों को पैगाम देना चाहती हैं, उन माओं को, उन बहनों को जो आपके साथ हो गया उनके साथ ना हो, तो उनको कोई पैगाम दे दें। भाई मैं ना अपने भाई से कहती थी कि अली 24 घंटे लड़कियों की तरह कमरे में ना पड़ा रहा करो। वो बाहर नहीं जाता था, उसके ना ज़्यादा दोस्त नहीं थे। अली 24 घंटे कमरे में ना पड़े रहा करो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो उसे छुड़वा दिया करो। मैंने उसे ये मशवरे दिए थे, कोई बहन या कोई माँ अपने भाई को ये ना कहे कि किसी की लड़ाई छुड़वा के आओ, पता नहीं किसी की लड़ाई में उनका बेटा भी चला जाए। अल्लाह पाक सबके बेटों को सलामत रखे, जो हमारे साथ हुए किसी के साथ ना हो। कभी अपने बेटों को या भाइयों को ना भेजे लड़ाइयाँ छुड़वाने। इंसानियत खत्म हो गई है, आप भी अपनी इंसानियत खत्म कर दें। नाज़रीन, ये दास्तान एक माँ की और बहन की है। नाज़रीन, मुझे वो याद आ गई कि जब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था। आज वो वक्त याद आ गया जब मेरी बहन ऐसे ही, अभी मेरी सिस्टर भी यही कहती है कि तुम भी ऐसे ना बैठा करो, चले जाया करो भाई। लेकिन आजकल नाज़रीन वक्त वो रहा ही नहीं।
पंजाब को, पाकिस्तान को नज़र लग गई है। ये देखें, अभी ये पिक्चर आपके सामने है, देखें कितना खूबसूरत है, जवान लड़का है। नाज़रीन, माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को जवान कहते हैं, और मारने वाला एक सेकंड नहीं सोचता कि ये घर की कफालत करने वाला आखिरी इंसान भी हो सकता है, घर की कफालत करने वाला सबसे बड़ा भी हो सकता है। नाज़रीन, ये बहन का दर्द बहनें ही समझ सकती हैं, और अगर तो ये भाई जिंदा होता तो ये भी दर्द समझता। नाज़रीन, आपसे इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आला अकाम तक पहुंच सके और इनको इंसाफ मिले, इनके भाई को इंसाफ मिले। नाज़रीन, अब यादें सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में रह गई हैं। अब वो यादें, वो आवाज़ें जो घर में दी जाती थी भाई को, कि दूर से भाई को, अब ये भाई किसको बोलेंगी? जो भाई अपना होता है वही भाई अपना होता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने भी बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।